Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay. So I'm going to start. So in previous classes, we have studied about DFT, that is direct Fourier transform. And you see that to find out the DFT, which is very long method, okay, as compared to any other method, that is we have to implement a formula, we have to put the value of the parameters in the formula, and after that we have to find out the corresponding sequences according to its position, which is very long method. Because if n point DFT will be there, suppose n is 16, then the procedure will be so long. So for to reduce this long process, okay, reduce this long process, another Fourier transform will be implemented, or the DFT will be modified, and that modified DFT is known as fast Fourier transform. Fast Fourier transform. Transform. So see, the name suggests itself, that is the Fourier transform is faster one, faster than your discrete Fourier transform. So that's why the term fast is added before the Fourier transform. Which type of Fourier transform it is? It is the fast Fourier transform, which reduce the number of steps and reduce the time consumption to find out the Fourier transform in compare with the discrete Fourier transform. So that type of Fourier transform is known as fast Fourier transform. And how the fast Fourier transform can be defined? The fast Fourier transform can be defined as the Fourier transform which is highly efficient for computing DFT with less time consumption as well as less step steps calculation. So that's why it is known as fast Fourier transform. And it was first implemented by mathematician Cooley and Tukey in the year of around 1965. Okay, so see, in case of DFT, since it is very uh, long method to calculate the fast Fourier transform, in compare with this, your fast Fourier transform is very much easy to find out. So to find out the fast Fourier transform, we have to follow the formula of DFT, but in reduced way. So whenever we are finding out the DFT, basically we are using the formula x of k equal to summation n equal to 0 n minus 1 x of n e to the power minus j 2 pi n k by n. Okay, and now whenever we are going to reduce any steps or reduce the time, so we have to also reduce the equation. So now in this case, how we can reduce the equation? So in DFT, I had already told you there is a term twiddle factor. Twiddle factor. Twiddle factor. Yes or no? ट्विडल फैक्टर का बारे में बोला था कि नहीं डीएफटी टाइम?
याद है? Yes, sir. क्या होता है ट्विडल फैक्टर? 2 pi k by n. दैट इज द एक्सप्रेशन। ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्विडल फैक्टर? एनी आइडिया? याद है या? Constant coefficient that are multiplied by the data. Okay, very good. So Twiddle factor is the basically it is the parameter which is basically a constant, and it is defined as defined by W n equal to this part 2 by j e to the power minus j 2 pi by n, that is e to the power minus j 2 pi by n. This is nothing but your Twiddle factor. And if we are representing entire equation of the DFT in terms of Twiddle factor, then the equation will becomes x of k equal to n equal to 0 to n minus 1 x of n, and this part e to the power minus j 2 pi by n. It will be denoted by Wn and to the power nk, and this is your reduced term. So see, the equation becomes much more reduced, and if we are considering only the Twiddle factor, then obviously our equation will be much more reduced, or steps of the equation will be decreased. Now मैं तो ये कह दिया हूं कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म विल रिड्यूस द टाइम कंजम्पशन एज वेल एज इट विल reduce the number of steps. Then how it will look like? So steps is to find out the reduce steps, or to reduce the steps. First of all, we have to make the entire equation in two terms, that is one for symmetric and another is periodicity. For symmetric, remember this w, that is wn k plus n by 2 will be equal to minus w n by k, and for periodicity w n k plus n equal to w n k. This is the two properties for Twiddle factor. And how we will reduce the steps? So to reduce the steps, we have to divide the entire sequence in two parts, that is even part and odd part. And even part of x of n can be denoted by x of x en, that is even part, and odd part of x of n can be denoted by x0 n. Okay, I will give you the example so that it will very much easy to you for understanding. Okay, first of all I have to find out the steps. Now if x of n can be divided into two parts, that is one for x even and another one is for x odd. So now according to Twiddle factor, according to the first Fourier transform, it will give you, I have to make the diagram, that is cross diagram, and in this part we have to add Twiddle factor, and this will be xe, that is this part,
xen plus this is the coefficient, so w n k x of odd, and in this part it will be taken, that is x of z, that is xen minus wn k x of 0 n. This is the way to find out the equation. So in case of fast Fourier transform, your entire solution will be represented by a curve, and to represented any equation with the help of diagram is much more easier than your finding out its equation. Okay, so two it will consisting few steps, and according to the few steps your calculation will be there. ठीक है, और एक बात हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, सिंस ये इसका नाम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इट कैन रिड्यूस द स्टेप्स बट इट कैन रिड्यूस द टाइम, बट इन पेन एंड पेपर, by the help of pen and paper, whenever you are going to find out the solution using FFT, you will see the steps is much more larger than your normal DFT calculation, as well as the time will it will take too much time for calculation for calculating the value of FFT. But advantages is whenever you are going to implement it on a system or on a device, the result will be shown within less time or less steps than your DFT. सो लाइक अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल कैलकुलेटर है, दैट इज जहां पे 2 + 2, 2 - 2, 2 × 2 और 2/2 ये कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन करने के लिए जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं, लेट इट बी नॉट दैट इज इकोनॉमिकल कैलकुलेशन, that is commercial calculation, which has no sine, cos, cosine, root, e to the exponential, logarithm or any other values, that is which is not a scientific calculator basically. ठीक है, सो देखोगे उस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो एल्गोरिदम हम लोगों को चाहिए, या जो फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, या जो मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए, द मैकेनिज्म इज मच मोर इजियर. Okay, but whenever you are going to code a scientific calculator, or whenever you are going to make the algorithm for scientific calculator, the hardware implement before hardware implementation, your coding, your steps, your algorithm will take too much time as well as too much steps. But whenever you are going to calculate the numbers on the device, जैसे हम एक कमर्शियल कैलकुलेटर ले रहे हैं, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले रहे हैं, ठीक है, एक कमर्शियल कैलकुलेटर में ऑब्वियसली मेरा लॉगरिथम का फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ समेशन तुम एक कमर्शियल कैलकुलेटर में करो और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में करो, देखोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में प्रोसेस जो होता है बहुत ही जल्दी होता है. सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर यू हैव टोल्ड दैट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास, दैट इज FFT will reduce the time consumption and it will reduce the steps, number of steps for with comparison to the your DFT. But whenever we are going to calculate it, or whenever we are going to do the problem regarding FFT on our pen and paper, then it will we observe that it will take much more time than your DFT. So how your statement is true? So my statement is for device, whatever your calculation, whatever mathematics tools, mathematical analysis you are doing in the theory part, that has to be implemented on a device. All the things, that is all the sequences, all the numbers, all the digits, all the values of x of n is nothing but a signal, and end of the day whenever we are going to implement on this device, we will see that their response, and on the basis on the response of the device, that is dependent on the digital signal processing, ठीक है, processor.
So then you will find that the time consumption steps of FFT is much more lower than your DFT. सो ये गलतफहमी में मत रहना कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो FFT आधा पेज में हो जाएगा, DFT के लिए 2 पेज लगेगा। इसका उल्टा होगा। FFT के लिए तुम्हारा मोर देन 3-4 पेजेस लग सकता है, DFT के लिए 2 पेज मैक्सिमम है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर तो बोले हैं फास्ट फोरियर है तो फास्ट फोरियर लग रहा है, ऐसा इतना लंबा चल रहा है। तो ये पूरा उल्टा है। कागज कलम में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना इज मच मोर टफर देन योर DFT, बिकॉज एक चीज है, 2+2 का समेशन करना जितना इजी है, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट निकालना उतना इजी होगा? नो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑपरेशन ऑन 2। ठीक है, 2+2 इज द बेसिक ऑपरेशन। तो DFT अगर बेसिक है तो उसका अपडेटेड वर्जन है FFT। तो अपडेटेड वर्जन इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड देन योर बैकडेटेड वर्जन। ओके, सो नाउ we have to find out the FFT, and before going to find out the FFT we have to maintain some basic steps. So first of all, the basic steps according to the procedure, the basic steps is like your endpoint DFT, okay, or 8-point DFT or 4-point DFT. There is also term for FFT, that is 8-point, say 4-point, 6-point and 16-point and so on. ठीक है, so this is known as यहाँ पे so this is known as radix 2 FFT radix 2, क्योंकि अगर n पॉइंट हुआ 8 पॉइंट तो दैट मीन्स 2 to the power 3, 4 पॉइंट हुआ तो 4 पॉइंट हुआ तो 2 to the power 4। सो यहाँ पे बेस है तुम्हारा 2, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज radix 2 FFT। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the steps. What are the steps? So steps means I have to follow these steps to find out the FFT. So now this FFT also known as decimation in time FFT, that means टाइम के रेस्पेक्ट में डेसिमेटेड हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस एंटायर FFT इज नोन एज radix 2 DIT FFT. So if in your question paper you will get DIT FFT or simply FFT, don't be confused. DIT FFT is also known as FFT. So now the steps. So first of all, to calculate any or to analyze any data on mathematical tools, you have to first follow the algorithm. So I can say steps of radix 2 DIT FFT. Okay, so first step क्या है? First step always deals with length. ठीक है, so if the number of input signal, the number of input signal will be denoted by m, and m is in the form of 2 to the power m, where m is the integer. 2 to the power m का फॉर्मेट में रहेगा, दैट इज 4-point DFT, दैट मीन्स 2 to the power 2, 8-point DFT 2 to the power 3, ठीक है, in that format. So the number of inputs will be in this format only. Second one is
input signal or sequence is shuffled through बीट रिवर्सल। ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे कैसे होता है, बीट रिवर्सल। ये प्रोसेस मैं देखूंगा जब मैं एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज number of stages. It can be calculated. Number of stages will be denoted by m. ठीक है, and m equal to log base 2 n, that is, ठीक है। So that is the basic 3 steps. Now 4, each stage consists of n by 2 butterflies. नाउ आप क्वेश्चन अगर सर यहाँ पे बटरफ्लाई कहाँ से आ गया, ठीक है। सो दैट पार्ट वी विल सी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एफएफटी। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये टर्म को याद रखो, बटरफ्लाई। आज ये मैं कराऊंगा तो बटरफ्लाई टर्म याद रखो, क्यों इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज input and output for each butterfly are separated by 2 to the power m minus 1 samples। नंबर 4 से लेके 5, 4 से लेके जितना भी स्टेप होगा ये सब स्टेप पहले देख लो, उसके बाद जब मैं कराऊंगा वहां पे तुम लोग देखोगे कैसे ये हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स, k equal to n t 2 to the power m, where t equal to 0 1 2 2 to the power m minus 1 minus 1। ठीक है। दैट इज k इज एसोसिएटेड विद द टूडल फैक्टर w टू द पावर k। यहाँ पे एक था w टू द पावर k n, w n टू द पावर k। ठीक है। नंबर 6, number of sets or section of butterflies in each stage is given by the factor 2 to the power m minus n। Now we will see this 4, 5, 6 and 7. These 4 parts is very much important, and this 4th part will separate the calculation of FFT from DFT. Okay? This 4 parts will separate FFT from DFT actually. Okay? So we will see how to calculate the FFT. So see, in case of calculation of FFT, we no need to find out the sequences। ठीक है। we have to use the position of the sequences। no need to have the sequence or no need to have the value of the sequences, just we will deal with the position of the sequence। so it is very much easy, because अगर मैं तुम्हें 100
पॉइंट का, ये 164 एक पॉइंट डीएफटी दे दूं, तो मुझे बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को लेके डील नहीं करना पड़ेगा। आई ओनली कैलकुलेट द पोजीशन, आई ओनली कैलकुलेट द वैल्यू the which is situated at the particular position, so we will deal with the position, so no need to use extra values, much more value means there is a chance of much more errors। ठीक है, और वैल्यू क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। लाइक व्हेन एवर आई एम गिविंग एक्स ऑफ एन इक्वल टू 1 2 2 1 3 4 3 2, तो देखो यहाँ पे टू कितना बार, 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है, 3 तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है। सो वैल्यू अगर हम देंगे तो रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, बट वेन एवर वी आर यूजिंग द पोजिशन ओनली, द पोजिशन इज यूनिक। हाँ, और पोजीशन रिपीट नहीं होगा, सो दैट इज द मेन एडवांटेज। सो लाइक आई एम सेइंग दैट फाइंड आउट, द 16 पॉइंट डीएफटी। मैं कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस को लेके ही सॉल्व करूंगा ताकि तुम लोगों को आसान जो सीक्वेंस आएगा उसमें फायदा हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो 16 पॉइंट डीएफटी। Now, how to find out the 16-point DFT? So, two way. First of all, we have to calculate. We are going to represent this 16-point DFT in terms of diagram. We can solve with the help of diagram or simply mathematical equation. Mathematical equation. Okay. So first of all, we will see how to find out the entire solution by using of diagram. Okay, and this diagram is nothing but flow charts or flow graph. Flow graph. So we will find out the FDFT or FFT of, sorry, 16 point. I'm just correcting the question, that is 16 point DIT FFT. FFT. Okay, so now we will find out the FFT using flow graph. So now what to do? First of all, I have to find out N, number of input signals. So what is the number of input signals? Tell me. Number of input signal कितना है? Number of input signal कितना है? 16 point है। Am I audible? नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल कितना है 16 पॉइंट DIT-FFT में? कितना नंबर इनपुट जाएगा, कितना मैं, कितना सीक्वेंस, कितना पोजीशन में ऑक्युपाई करूंगा, दैट इज 16 पोजीशन, 16 पोजीशन से ऑक्युपाई करूंगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन से नंबर ऑफ इनपुट सीक्वेंस इज और इनपुट सैंपल्स इज 16। सो इन दिस केस the 16 will be the value of n, number of input signal n। so देखो n का वैल्यू कितना होगा 16। तो 16 को अगर हम 2 टू द पावर 2 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा 2 टू द पावर 4, दैट मींस m इक्वल टू 4। ठीक है, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। सो n का वैल्यू 16 है तो m का वैल्यू 4 है। सो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीटेड हो गया। सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स। नेक्स्ट इज the input sequence is shuffled through beat reversal. Now this is the main calculation part. Depending on this, your entire calculation will be there. So now 16 part है। So from 0th position कहां तक मेरा ये करेगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज 15th पोजीशन तक इंक्रीज करेगा। 0 to 15, दैट इज द 16 नंबर ऑफ सैंपल्स। So now I have to find out the beat reversal. So, so find out the beat reversal.
So now this is the table having 4 columns. So now what we will do? First will be the columns for index, that is the position index. Next is binary representation. Binary representation. Third one is bit reversal order. Bit reversal order. Then bit reversal index. Bit reversal index. This is the 4 rows, 4 columns you have to remember. So first of all, I have to write the entire sequence, number of samples. That is starting from x of 0, x of 1, x of 2, x of एक मिनट और एक कॉलम में ले लेता हूं, दैट इज पोजीशन. पोजीशन, ठीक है. यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है. तो यहाँ पे x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6, x of 7, x of 8, x of 9, x of 10, x of 11, x of 12, x of 13, x of 14, and x of 15. These are the position. And position wise इन लोगों का इंडेक्स क्या है? That is 0, 1, 2, 3, 4, 5. That is index n. n का वैल्यू पुट करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. That is the n, वैल्यू ऑफ n. इंडेक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ n. पोजीशन है x ऑफ n, ये याद रखना. ठीक है. नाउ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. तो एम है 4, तो 4 प्लेस तक हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे. दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1. 15 का होगा 4 ones. 4 ones. So यहाँ पे again 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, again 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1. That is 8. 12 का होगा 1 1 0 0. 13 1 1 0 1 1 1 1 0. ठीक है. यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके. नाउ बीट रिवर्सल कैसे करेंगे? इसका मिरर इमेज. तो 0 0 का मिरर इमेज 0 0 0 होगा. इसका मिरर इमेज क्या होगा? 1 इधर है, यहाँ पे एक मिरर रख दो. यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख देंगे तो यहाँ का वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? ये 1 चलाएगा इधर, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पे भी मिरर रख दो तो क्या होगा? 0 1 0 0. यहाँ पे भी एक मिरर रख दो, ठीक है. तो क्या आएगा? 1 1 0 0. नाउ इसका हो जाएगा 0 0 1 0. दिस इज 0 0 1 0. दिस इज योर 1 0 1 0. इसका हो जाएगा तुम्हारा 0 1 1 0.
1 1 1 0, it will become 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1, that is 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1, and last one will be the 1 1 1 1. So that is the bit reversal. Now bit reversal index. Before that, I will use another column, that is bit reversal position. बीट रिवर्सल पोजीशन। तो देखते हैं बीट रिवर्सल पोजीशन, पहले हम इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, जरूरत नहीं है बीट रिवर्सल पोजीशन का, जरूरत नहीं है, ज्यादा डेटा देंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो नाउ बीट रिवर्सल पोजीशन, इसका वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? दैट इज 0। व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका वैल्यू क्या है? 8। इसका वैल्यू क्या है? 4। इसका वैल्यू है 12। दैट इज सिंपली वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 2, and then its value is 10। इसका वैल्यू है 6। this value is 14। okay, 14, now its value is 1 9 5 13 3 11 7 and 15। so these are the bit reversal value, the step 2। okay, now next is third step, number of stages. Number of stages, that is the value of m, and log 2 16, so it will gives you 4। okay, already in the very first steps you have to calculate this m equal to 4, so 4 stages will be there, that means 4 पढ़ाव होगा ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज। नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, दैट इज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज कितना होगा? n/2, that is 16/2, that is 8 butterflies will be there। okay, and fifth one is input and output for each butterfly are separated by, so input and output for each butterfly in stages are separated by 2 to the power m-1 samples। so now how many steps are there? 4। so stage 1 में सेपरेशन कितना होगा?
1 सैंपल। ठीक है, तो स्टेज 2 में, स्टेज 2, ये याद रखना, 2 सैंपल्स। स्टेज 3 में 4 सैंपल्स, एंड स्टेज 4 में 8 samples. So the stage samples calculated will be 2 to the power 1 minus 1, stage 1. ठीक है, स्टेज एम। सो स्टेज 1 में, तो स्टेज 1 में वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू 1 है, सो 2 टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। स्टेज 2 में एम का वैल्यू क्या है, 2, सो 2 टू द पावर एम माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। ठीक है, स्टेज 3 में सेपरेशन, स्टेज 3 में एम का वैल्यू क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एम। तो एंड स्टेज 3 में m का वैल्यू कितना है, 3, सो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। स्टेज 4 में m का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ सेपरेशन, द सेपरेशन फॉर ईच बटरफ्लाई इन ईच टेस्ट। ठीक है, नाउ सिक्स्थ इज, 6 पॉइंट क्या था यहाँ पे, दैट इज k। Now the value of k, 6, k equal to nt 2 to the power n, t equal to 0, 1, 2 up to 2 to the power m minus 1 minus 1। ठीक है, so now for stage 1, how many stages are there, 4 stages। so for stage 1 m का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सो k का वैल्यू होगा स्टेज 1, दैट इज 0, t is 0 for stage 1, t is 0 and 1 for stage 2, t is 0, 1, 2 for stage 3, t is 0, 1, 2, 3 for stage 4। so k का वैल्यू कितना होगा, n into t by 2 to the power m, where for stage 1 t equal to 0, okay, and ये वैल्यू हम लेंगे, ये जो वैल्यू है सबसे इजी मेथड है, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे सेपरेशन। सो यहाँ पे क्या है, एक है, सो दैट इज टी विल एसोसिएटेड विद 1 वैल्यूज। ठीक है, सो टी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू, एज यू नो एन का वैल्यू है तुम्हारा 16, m का वैल्यू है 1, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 16 into 0 by 2 to the power 1। so कितना वैल्यू आ रहा है, that will gives you 0। so for stage 1 k value will be 0। for stage 2, for stage 2 k होगा, n का वैल्यू 16। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूं, n t 2 to the power m for stage 2। ठीक है, t का वैल्यू कितना आएगा, कितना वैल्यू t का कंसीडर होगा, टू वैल्यूज ऑफ t विल बी कंसीडर्ड। सो t का टू वैल्यू कितना है, 0 एंड 1, सो 0 एंड 1। m का वैल्यू है 2 फॉर स्टेज 2। ठीक है, सो नाउ n का वैल्यू है 16, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। सो k, का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, दैट इज k का वैल्यू पहला आएगा फॉर t इक्वल टू 0, that will be gives you 0, and second one is 16 into 1 by 2 to the power 2। so एक आएगा 0, दूसरा आएगा 16 by 4, so 0 and 4, k का वैल्यू होगा फॉर स्टेज 2। स्टेज 3, फॉर स्टेज 3, स्टेज 3 में कैलकुलेट करो, t का कितना वैल्यू होगा, t का वैल्यू होगा इज एसोसिएटेड विद दिस, दैट इज 4 वैल्यूज ऑफ t, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, दैट इज t का वैल्यू है 0, 1, 2, 3।
So now calculate how many value of k. So what is the value of k in case of stage 3? Calculate. There are four values. There are four values. कितना कितना वैल्यू आएगा? कितना कितना वैल्यू आएगा? देखो पहला वैल्यू है जो टी जीरो इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है? टी का वैल्यू जीरो होगा तो के का वैल्यू जीरो आएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। टी का वैल्यू वन आएगा, ठीक है, तो टी का वैल्यू वन है तो यहाँ सॉरी टी का वैल्यू जीरो वन, टी का वैल्यू वन है तो कितना आएगा? सर 2। नाउ टी का वैल्यू टू, टी का वैल्यू टू लो। ये एम का वैल्यू थ्री लेना, हाँ एम का वैल्यू थ्री लेना। सर 4। फोर, गुड। एंड टी का वैल्यू सर 2 में 4 आएगा। सर 1 में 2 आएगा और 2 में 4 आएगा। 3 में कितना आएगा? 3 में आई थिंक 6, 0 2 4 6। Yes, sir. यस सर 6। नाउ फॉर स्टेज 4, stage 4, that means t value will be 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 8 वैल्यू है, ठीक है, तो 0 to 7 4 5 6 7। एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। सो नाउ एन है 16। सो के इक्वल टू, एक बार मैच कर लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है कि नहीं, एक बार मैच कर लो, ठीक है। तो आई थिंक यही आएगा, यही आना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि एग्जाम में तुम्हारा इतना कैलकुलेशन में करोगे तो टाइम का टेकिंग होगा। तो देखो 16 पॉइंट के लिए लास्ट सैंपल का लास्ट स्टेज का जो के का वैल्यू आ रहा है वो 0 to 7 आ रहा है, दैट इज 8 सैंपल 8 16 पॉइंट है, ठीक है। तो वो 8 आ रहा है, यहां से मेरा 8 कैलकुलेट हो रहा है, यहां से मेरा वैल्यू 8 कैलकुलेट हो रहा है, तो 0 to 7 आ रहा है। नाउ एक स्टेप ऊपर जाओ, स्टेज 3 में जाओ, रिवर्स ऑर्डर में करना है एग्जाम में, ठीक है। स्टेज 3 में जाओ, स्टेज 3 में क्या आएगा? देखो एक एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप ले लो, इवन नंबर्स, दैट इज 0 2 4 6, ठीक है। स्टेज 2 में देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका फिर से एक बीट छोड़ के कैलकुलेट करो, देखो 0 और 4 आ रहा है। स्टेज 1 में क्या होगा? 0 और 4 में से पहला बीट को ले लो, एक स्टेप छोड़ के दूसरा बीट है नहीं कोई, तो 0 आ रहा है, देखो वही वैल्यू आएगा 0 0 4 0 2 4 6 एंड 0 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एग्जाम में ये रिवर्स करना, लेकिन ऑर्डर यही हिसाब से लिखना, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4, ये नहीं कि पहले स्टेज 4 में लिख दो, ठीक है। पहले तुम अपने हिसाब से रफ में कैलकुलेट कर लो स्टेज 4 में कितना आएगा, स्टेज 4 में दैट इज 0 to 7। स्टेज 3 में कितना आएगा? और एक ऑल्टरनेट वैल्यू ले लो, दैट इज 0 2 4 6।
फिर स्टेज 2 में स्टेज 3 से एक ऑल्टरनेट वैल्यू ले लो, 0 एंड 4। स्टेज 1 में स्टेज 2 से एक ऑल्टरनेट वैल्यू ले लो, दैट इज 0। ठीक है, सो दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग्स, क्योंकि इसके लिए भी तुम्हारा 2 से 3 मिनट चला जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये हो गया मेरा k का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। नाउ लास्ट स्टेज इज सेट्स और सेक्शन। ठीक है, ये पोर्शन 9th पोर्शन। ठीक है, स्टेज 6 हो गया। ओके, सो दैट इज द k का वैल्यू इसके साथ कैलकुलेटेड है। 6 7 में क्या करेंगे, हम फ्लोग्राम बनाएंगे, फ्लोग्राफ बनाएंगे। तो फ्लोग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द बीट रिवर्सल इंडेक्स इन टर्म ऑफ x ऑफ n। x ऑफ n के रेस्पेक्ट में बीट रिवर्सल इंडेक्स को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बीट रिवर्सल इंडेक्स को लेंगे तो क्या होगा, देयर आर 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 स्टेजेस में। ठीक है, 4 स्टेज में डिवाइड कर दूंगा। स्टेज 1, स्टेज 1, थोड़ा इसको छोटा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4। दैट इज पे हम लिखेंगे, ये है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। दैट 4 स्टेजेस। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे बीट रिवर्सल इंडेक्स को x ऑफ n में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीट रिवर्सल इंडेक्स मैच करो, x ऑफ 0 था पहले, फिर x ऑफ 8 था, x ऑफ 4 था, x ऑफ 12, x ऑफ 2, x ऑफ 10, x ऑफ 6, x ऑफ 14, x ऑफ 1, x ऑफ 9, x of 5, x of 13, x of 3, x of 11, x of 7 and x of 15। ये था मेरा बीट रिवर्सल इंडेक्स में n का वैल्यू, एज वेल एज आई हैव टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ x of n। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, नेक्स्ट इज स्टेज 1। दैट इज स्टेज 1 में क्या करेंगे, 2 बीट करके डिवाइड करेंगे। सिंपल, सिंपली आई हैव टू रिप्रेजेंट इट, 2 बीट करके डिवाइड करेंगे, 2 बीट करके डिवाइड करेंगे, 2 बीट करके डिवाइड करेंगे एंड देन क्रॉस, क्रॉस। क्रॉस
एंड ईच क्रॉस इज लुक लाइक बटरफ्लाई। देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक डिफाइन करेंगे तो ये एक बटरफ्लाई है, दिस इज बटरफ्लाई, 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 एक बटरफ्लाई। तो टोटल कितना बटरफ्लाई है? 8 बटरफ्लाई। देखो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन सही हो रहा है। नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इन ईच स्टेज 8, 8 butterflies in each stage will be 8, तो 8 butterflies will be there। so ये butterflies। now यहाँ का कैलकुलेशन का क्या होगा? it will look like this, पहले ये वाला कैलकुलेशन, it will look like this, ठीक है, it will look like this। so फर्स्ट स्टेज में k का वैल्यू होगा 0, as you know that k का वैल्यू है फर्स्ट स्टेज में 0। so wn0, that means यहाँ पे होगा wn का वैल्यू 16 0, एंड द एरो विल लुक लाइक दिस। सो इसका वैल्यू होगा x of 0 प्लस w16 0 x of 8, ठीक है, एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय s स्टेज 1 में जीरोथ वैल्यू, जीरो वैल्यू x s, सॉरी स्टेज 1 में S1 में 1 वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा x of 0 माइनस w16 by 0 x of 8। Simply you have to find out all S1, S2, S1 of 3, S1 of 4, simply simply up to S1 of 15, ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम थिंग, W16 by 0, दिस इज S1 of 2, S1 of 3, दैट इज स्टेज 1, ठीक है, S1 of 4, S1 of 5, S1 of 6, S1 of 7, S1 of 8, S1 of 9, S1 of 10, S1 of 11, S1 of 12, S1 of 13, S1 of 14, S1 of 15। इसका वैल्यू हम निकालेंगे हैविंग द सेम W16 by 0, W16 0, W16 0, W16 0, W16 0, W16 0, ठीक है। सिमिलरली हम एक के बाद एक इसका वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या करेंगे? नाउ क्वेश्चन इज स्टेज 2। स्टेज 2 में यहाँ पे दो दो करके लिए हैं, यहाँ पे हम लोग चार चार करके लेंगे। ये चार को एक डिवाइड किए, इस चार को एक में डिवाइड किए, इस चार को एक में डिवाइड किए, और नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला चार को एक में डिवाइड किए। नाउ यहाँ पे देखो S01, S1012, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भूल जाओ। नाउ मैं डील करूंगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है। सो S1 इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस कराएंगे, सो इट विल बी क्रॉस विद दिस फर्स्ट टर्म, इट विल बी क्रॉस विद दिस फर्स्ट सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड ये यहाँ का सेकेंड टर्म। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, यहाँ पे भी फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, दैट मीन्स ये वाला सेकेंड, ये वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, ठीक है। सो नाउ
इसको हम नाम देंगे S2, ठीक है। सो यहाँ होगा S2 0, S2 0, S2 1, S2 3, S2 4, ठीक है। सिमिलरली S2 5, S2 6, S2 7, S2 8, सॉरी 0 1 2, सॉरी यहाँ पे एक टर्म करके कम होगा, 0 1 2 3 4 5 6, and this is 7, S2 8, S2 9, S2 10, S2 11, S2 12, S2 13, S2 14 and S2 15. सी ये कतई तुम्हारा ये टर्म नहीं है, इजी नहीं है, इजी कंपेयर इजी स्टेप कम नहीं हो रहा है, ठीक है। बट व्हेन एवर फाइनल जब मैं डिवाइस में इंस्टॉल करूंगा तब ये टर्म जो है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही इजी होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ट्विडल फैक्टर देना पड़ेगा, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज यहाँ पे ट्विडल फैक्टर। व्हाट आर द ट्विडल फैक्टर्स? दैट इज 0 एंड 4। के का वैल्यू 0 एंड 4 है, यहाँ पे देखो के का वैल्यू 0 एंड 4 है, तो यहाँ पे दो टोटल बटरफ्लाईज कितना है? 8 बटरफ्लाईज। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटरफ्लाईज। मेरा कैलकुलेशन सही है। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, दैट इज W16/0 and W16/4। यहाँ पे भी सेम थिंग, W16/0 and W16/4। यहाँ पे भी सेम थिंग, W16 0 and W16 4। Same thing happens to this W16 0, W16 4, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में क्या करेंगे? इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो पहले आया 2 2 करके, फिर 4 4 करके, फिर हाफ 8 8 करके। सो नाउ इस ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट को इस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ो, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ जोड़ो, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ जोड़ो, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ो। नाउ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। सिमिलरली फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा S3 0, S3 1, S3 2, S3 3, S3 4, S3 5, S3 6, S3 7 and S3 8 up to S3 15। सो नाउ यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, टोटल फैक्टर कितना आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पे स्टेज 3 में, ठीक है, स्टेज 1 में ये गया, स्टेज 2 में ये गया, स्टेज 3 में कितना आएगा? नाउ स्टेज 3 में आएगा तुम्हारा, सॉरी ये फर्स्ट स्टेज, एक मिनट रुको, स्टेज
दैट इज स्टेज 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 16/0, 16/4 2, 16/6, oh sorry 4 and 16/6। Similarly W16/0, W16/2, W16/4 and W16/6। Now next is the final one। तो अब फाइनल वन क्या होगा, इंटायर दो ब्लॉक को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट, लाइक इट विल लुक लाइक दिस, सॉरी इट विल लुक लाइक दिस। फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के साथ इसका सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के साथ इसका थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट के साथ इसका फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ के साथ इसका फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स के साथ इसका सिक्स एलिमेंट, सेवेंथ के साथ इसका सेवेंथ एलिमेंट। एंड सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ तक एक एलिमेंटरी मल्टीप्लिकेशन होगा। सेकेंड के साथ सेकेंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ, फिफ्थ के साथ फिफ्थ, सेवेंथ के साथ सेवेंथ एंड लास्ट के साथ लास्ट। ठीक है, सिमिलरली ये कैलकुलेशन। ठीक है, एलिमेंट क्रॉसओवर। तो यहाँ पे यू विल गेट एक 0 1 2 3 4 5 6 करके तुम्हारा लास्ट फाइनल आएगा। तो लास्ट फाइनल में जो वैल्यू आएगा, लास्ट वाला सिचुएशन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां पे पेज सफिशिएंट नहीं है। तो लास्ट वाला एलिमेंट S3 0, S3 1, S3 4 डॉट 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 अप टू S3 तुम्हारा 7 रहेगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में S3 8, S3 9, S3 10 एंड अप टू S3 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ X8, इसके साथ 9, 4 के साथ तुम्हारा 10 एंड अप टू एकदम सेवेंथ आएगा 15 के साथ। Similarly crossover it will look like this। ठीक है, and whatever the value will be there, that is nothing but S40, and instead of write down S40 you can write down X0, X1, X2 and X7, X8 up to X15। ठीक है, और यहाँ का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू एज पर ओमेगा 16 0, ओमेगा 16 1, ओमेगा 16 W16 2 एंड दिस विल बी W16 7। ये वैल्यू आएगा तुम्हारा टोटल बटरफ्लाई में। सो दिस इज द फ्लो ग्राफ एंड यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, only you have to calculate the value of W16 0 के साथ मेरा x का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे। दैट इज x इवन n प्लस W16 0 x ऑड n एंड दूसरे में x इवन n माइनस W16 0 x ऑड n। और आई कैन से अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या आएगा, x इवन n प्लस W n के x ऑड n एंड x इवन n माइनस W n के x ऑड n। इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे ईच स्टेप में। तो सी, एक प्रॉब्लम के लिए मोर देन हाफ आवर लगेगा। So obviously if you will get
the value of, if you will get the problem related to FFT, do it at the end. ठीक है, ये पहले में ही शुरू मत कर देना FFT रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि पहले में शुरू करोगे तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओगे, इट विल टेक 1 आवर इंस्टेड ऑफ हाफ आवर। ठीक है, अगर एक भी स्टेप में तुम्हारा गलती हुआ तो ये पूरा जो तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट है, ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट गड़बड़ जाएगा। ठीक है, सो नो नीड टू राइट डाउन द वैल्यूज नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली ये 16 पॉइंट है। नाउ योर टास्क इज, योर असाइनमेंट इज फाइंड आउट द, और सिंपली मैं ये लिखता हूं, ड्रॉ द फ्लो, ड्रॉ द फ्लो ग्राफ फॉर 4 point DIT FFT and DIT FFT and 8 point DIT FFT। ये तुम लोगों का असाइनमेंट। ठीक है, तो टुडे अप टू दिस। Okay, next class we will see how we will find out the exact value of a given sequence। ठीक है, मुझे अभी तक तो मैंने पोजीशन देखा था, अब मैं गिवन सीक्वेंस को निकालूंगा, फाइंडिंग आउट DFT ऑफ अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग FFT। ओके, सो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, फाइंड DFT using FFT। ओके, सो ये होगा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। So that much for today. Okay, now I am going to conclude the class. Thank you all.